Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to study about all English tenses. Guys, you can see on the screen there's a chart given. So in this chart we'll understand about all the English tenses with its timeline along with uses of all the English tenses with the example. And guys, in this chart we'll study structure of all the English tenses. और गाइस, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है इनके स्ट्रक्चर याद रखने में तो आज हम सीखेंगे कि हम इनको रिलेट करके कैसे याद कर सकते हैं. सो गाइस, देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस. Present tense has its 4 subkinds. They are simple present to present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So first we'll understand simple present or present indefinite tense. It is used for actions in a time which are happening right now. Example, I'm happy. Habitual actions. Example, she does yoga daily. Stating a fact, President of the USA lives in the White House. And universal truth. Example, sun rises in the east. You can also see the timeline for simple present tense. So example is she does yoga daily. तो इसका टाइमलाइन में क्योंकि वो योगा डेली करती है, so that action was happening in the past, it is happening in present, and it may be possible that she will continue it in future also. Now we'll see present continuous tense. So guys, by the word itself you can understand continuous मतलब जो एक्टिविटी प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, कंटिन्यू है. टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यू कैन सी द टाइमलाइन. सो एक्शन स्टार्टेड इन द प्रेजेंट एंड इट इज गोइंग ऑन. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज करेंटली हैपनिंग. एग्जाम्पल, जॉन इज वॉचिंग मूवी at the moment. Fixed arrangements, clients are arriving at 5 p.m. Repeated actions, he is always coming late to the class and to speak about the current trends. Example, online shopping is growing in popularity nowadays. Now we'll understand present perfect tense. तो हम present perfect tense का use कहाँ करते हैं? To express completed action at an indefinite time. You can see the timeline. तो एक्शन स्टार्टेड एंड इट कंप्लीटेड बट एट एन इनडेफिनेट टाइम. तो जो एक्शंस इनडेफिनेट टाइम पे कंप्लीट होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. वी विल सी ऑल द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो फर्स्ट वन इज एक्शन कंप्लीटेड एट एन indefinite time. Example, we have talked before. Experiences, I have been to Mysore 2 times. Accomplishment, man has walked on the moon. Repeated actions in an unspecified time period between the past and now. Example, we have visited Jaipur several times. Action completed in the recent past. Action जो recent past में complete हुए हैं. Example, I have just finished my assignment. Now we'll understand present perfect continuous tense. So it is used to express an action that began in the past. Action जो past में start हुआ है and is continuing at the time of speaking. We'll see the example. Example, she has been studying since 10 a.m. Another example is she has been studying for 4 hours. वो सुबह से पढ़ रही है. Another example is वो 4 घंटे से पढ़ रही है. Now we'll understand the use of for and since in present perfect continuous tense. तो for कहाँ यूज़ करते हैं? जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड होता है उनके साथ यूज़ करते हैं. Example, 3 hours, 2 months, 5 years, 1 decade, etc. And since is used with a point of time. Example, 9 a.m. 1st January 2016 Monday and 1800 years. Guys, you can also see the timeline. तो timeline में action past में start हुआ है and it continued till the present time or at the time of speaking. Now we'll see past tense. It is used to show action started in the past and ended in the past. Example, I taught simple present tense. और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? To express habitual actions in the past. Example, Rajput women practiced sati pratha. Guys, you can see the timeline. The action started in the past and ended in the past. Now we'll understand past
continuous tense. So it is used to show an action that was going on for some time in the past and interrupted actions in the past. तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो एक्शन पास्ट में गोइंग ऑन होता है या इंटरप्टेड होता है. इंटरप्टेड कैसे? विल अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज व्हेन द बेल रैंग ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन. Was watching television and it was interrupted by the bell. So to show interrupted actions and ongoing action, we use past continuous tense. Now we'll understand past perfect tense. So it is used to express action completed before another action begin in the past. तो past में अगर two actions हैं और जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस. और सेकेंड एक्शन को एक्सप्रेस हम किस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में. विल अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज व्हेन वी अराइव्ड एट द स्कूल बेल हैड ऑलरेडी रंग. जब हम स्कूल पहुँचे तो स्कूल बेल ऑलरेडी बज चुकी थी. तो स्कूल बेल पहले बजी तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया. और when we arrived at school ये एक्शन को हमने सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया. Now we'll understand past perfect continuous tense. So it is used to express action started in the past and continued up until another time in the past. तो past perfect tense का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और कुछ टाइम चलता है, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है. Guys you can see in the timeline. तो पास्ट में एक पॉइंट है जहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू हुआ, देन इट गॉट कंप्लीटेड. सो एग्जाम्पल इज राम हैड बीन वेटिंग फॉर 4 hours or 10 AM when the train finally arrived. So Ram had been waiting and he waited for 4 hours and then his action got completed when the train finally arrived. Now we'll understand simple future or future indefinite tense. So it is used to express action which will take place in future. Future में जो action होंगे, example will go to the college tomorrow. हम कल college जाएंगे. We use going to in simple future tense when we have decided to do something before talking about it. अब future कोई action है जो हमने decide कर लिया है, को कहने से पहले तो उसके लिए हम going to use करते हैं. Example, I decided that I'm not going to go to the party because I'm sick. Now we'll understand future continuous tense. So it is used to express an action that will be going on in the future. तो future में जो action continue होगा या going on होगा, उनको हम express करने के लिए future continuous tense का use करेंगे. You can see the timeline that action is going on in future. Example, he will be waiting for me at the airport tomorrow. Now we'll understand future perfect tense. So it is used to express completed action at some point in future. जो action future में किसी point पर complete हो चुके होंगे उनको express करने के लिए हम future perfect tense का use करते हैं. Example, Ram will have finished this project by next month. Next month तक राम ये project finish कर चुका होगा. तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, नेक्स्ट मंथ. तो नेक्स्ट मंथ तक ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. तो सो टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ विल अंडरस्टैंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो इट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर विथ ड्यूरेशन. तो फ्यूचर में जो एक्शन गोइंग ऑन होगा और उसका ड्यूरेशन भी होगा, टू एक्सप्रेस दैट वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो नेक्स्ट ईयर she will have been learning English for 2 years. Next year वो English 2 साल से सीख रही होगी. You can see the timeline. Action is going on in the future. Guys, जिनको tenses के structure याद रखने में confusion होता है या जो भूल जाते हैं, तो वो कैसे याद रख सकते हैं, relate करके. So guys, you can see the chart. आप ऐसे ही एक चार्ट बना लीजिए और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है और कहाँ चेंज है. तो पहले हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को, फ्यूचर सिंपल टेंस को. इनके स्ट्रक्चर को हमें कैसे याद रखना है. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉमन है. और गाइस इनमें वर्ब का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है. सिर्फ
सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। गाइस आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म होता है वो, एंड थर्ड फॉर्म होता है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करता है एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हम विल और शैल को ऐड कर देते हैं। सो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल एंड शैल। गाइस अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन के साथ वर्ब के साथ S एंड ES लगता है, और I, we एंड they के साथ S और ES नहीं ऐड होता। गाइस अगर आप समझना चाहते हो यूज़ ऑफ S एंड ES विद अ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको ओपन कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है यूज़ ऑफ S एंड ES। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई वर्कड, वी वर्कड, यू वर्कड, दे वर्कड, ही, शी, इट एंड जॉन वर्कड। नाउ विल अंडरस्टैंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइस इसमें हमें विल और शैल का यूज़ समझना है कि हमें विल का यूज़ कहाँ करना है और शैल का यूज़ कहाँ करना है। तो गाइस शैल का यूज़ जो है वो फॉर्मली होता है, और अगर आपको शैल का यूज़ समझना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। वैसे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का ही यूज़ करते हैं हम, I और V के साथ। शैल का यूज़ फॉर्मली होता है। सो I'll work, will work, you will work, they'll work, he, she, it, John will work. And guys अगर आप समझना चाहते हो शैल का यूज़ then you can check my description box. Now we'll understand कंटिन्यूस टेंस। तो गाइस फिर से हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। तो कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, वो ING यूज़ करता है वर्ब के साथ। हर वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ING। गाइस अब इसमें डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज़ आर। एम का यूज़ होता है आई के साथ, आर का यूज़ होता है प्लूरल वर्ब के साथ, एंड इसका यूज़ होता है ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन के साथ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं वो हैं क्या, विल, वी। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी वर्किंग, वी विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग, ही, शी, इट एंड जॉन विल बी वर्किंग। नाउ विल अंडरस्टैंड परफेक्ट टेंस। तो हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो गाइस परफेक्ट टेंस हर वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द यूज़ करता है। अब इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज़ एंड हैव। तो हैव का के साथ यूज़ करते हैं हम आई, वी एंड यू एंड दे के साथ हैव यूज़ करते हैं, और हैज़ का के साथ यूज़ करते हैं ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन के साथ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। इसमें हम सिंगुलर एंड प्लूरल सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल के साथ हैव और ऐड कर देते हैं। सो आई विल हैव वर्कड, वी विल हैव वर्कड, यू विल हैव वर्कड, दे विल हैव वर्कड, ही, शी, इट एंड जॉन विल हैव वर्कड। अब हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो गाइस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का किसका कॉम्बिनेशन होता है, परफेक्ट टेंस का एंड कंटिन्यूस टेंस का। तो कंटिन्यूस टेंस का आ जाता है इसमें ING, और परफेक्ट टेंस के इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैं। सेम वे पास्ट टेंस में भी होगा, इसमें फ्यूचर टेंस में ही वही होगी। तो परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं, और इसमें बीन ऐड हो जाता है। तो गाइस
अब हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब में हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं प्लस टाइम ड्यूरेशन, और बीन का यूज़ करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ बीन ऐड हो जाता है। सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बीन के थ्रू और सिंस, फॉर एंड टाइम ड्यूरेशन। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सो गाइस, इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो टेंस के स्ट्रक्चर को। गाइस, आई होप यू विल फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, and if you find it helpful, then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also leave a comment about my video. Thank you so much for watching. Stay safe.